government is wherein we partner with forward-thinking governments like HEC Pakistan and provide Coursera platform access to the wider citizens and the college students who are right now inside the country to provide them with the training and skill development so that they can be industry ready and get opportunities across the world. Next, we have Coursera for Campus. Coursera for Campus is where we partner with individual universities across the world, and we also deliver for credit programs for the colleges wherever we are partnered with. Can we move to the next one? Next is a slide which will kind of show us what actually is human adaptability is and how fast technology is evolving. If you can see the graph, there are no data points, but you can clearly see that the pace at which technology is advancing, माने कि जिस तरीके से एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी में हो रहा है, the pace at which technology is moving is much higher pace and compared to what a humans can understand, what humans can take in terms of the skills. तो हमारा इस मिशन का गोल ये है कि आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स या लर्नर्स हैं उनको कटिंग एज स्किल्स के थ्रू आपको लर्निंग का हेल्प करे और आपको इस गैप जैसे कि ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी के ऊपर बट टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट्स को भी ध्यान में रखे. We should be in this particular area wherein we have skills which are beyond what our human adaptability is, and we are also learning the latest technologies which are there uh, uh, there in the market. Can we move to the next one? Coursera can help you in three ways. It will help you to skillify and upskill your current skills and make you expert in a particular area or in a particular domain. It will also help you to avoid permanent detours so that you can actually gain real world skills which are very much useful to you. On the platform, you will not only earn and learn courses and certificates, but you'll also have something called as guided projects, which are very short in duration, which is 2 to 3 hours in duration. But these guided projects will give you a hands-on exposure on various technologies and platforms whichever are there, be it with Canva, Photoshop, or AWS. So a video will be present for you at the guided project, and you should be able to do it. So this will help you to gain practical exposure, which will help you to avoid permanent detours. You will also be able to understand what is that employers want, and those skills you can earn, and you can earn the skills so that you can be job ready upon graduation or whenever you are applying or looking for jobs. Can we go to the next one, please? The content is our hero. Content which is there on Coursera is from the world-class top universities, as well as the industry partners are the world-class ones, be it with IBM, Google, AWS, Amazon, Salesforce, ADP. Mostly we have 150 plus partners, industry partners who are giving content. This content is taught by the people who are working in a particular industry. For example, if you take a course from Google, which is a Google data analytics course, the Google data analytics course will be taught by a data scientist who is right now working in Google. So this kind of gives you a practical exposure and will also help you to gain understanding and knowledge on what real world challenges will they face while they are working, and how to solve that, and how real world skills will help you to frame and be better employable. Then we have academic programs which are being taught by universities. These are properly designed to suit our academics. So in case if you want to start learning a skill from the scratch, then I think a university program will give you a better understanding and a holistic view of the basics of the program until to the expert level. So all our credentials are approved and vetted clearly by the industry experts across the world. Some of our content approvers are Nobel laureates and people who have done hundreds of publications and also have a lot of patents. So the content on Coursera is 100% authentic and world class. That is something which we are absolutely proud about, and that is something we are 100% sure about. Can we move on to the next one, please? These are some of the skills which you will be which you can
look forward to gain on Coursera with the courses or the guided projects you are going to do. The domains which we have access to is business domain, data science, technology, leadership, and human skills. But under each of these domains, there are various skills which you can master. With the number of courses which are available, you can look for mastering the courses from a conversant level, which is like the very starting level of a skill to the advanced level, so that you can gain skills accordingly. Can we move on to the next one? When you complete a course, you will be rewarded with a certificate with the industry partners logo into it, which can stand as a differentiator for you when you apply for jobs, when you are looking to apply for any opportunities inside Pakistan or abroad. By the end of the course, you will not only gain a lot of knowledge, but you will also be able to gain a lot of good practical exposure as well as certificates, which will stand as a testimony for your learning. Can we go to the next one, please? Coursera is also available on mobile. So in case if you have not downloaded, please download the Coursera app. Once your application goes through the DLSEI portal approval, and once the DLSEI team or the Noon team over here, once they approve your access, you should be able to log into Coursera using your mobile app. On your mobile app, all you just have to do is to commit yourself for learning something new every single day. And any time spent on learning on Coursera is going to help you. And the time you spend every single day on Coursera is going to take a long way. So please do download the mobile of Coursera. It is available in both iOS and Android. Can we go to the next one, please? With that, we have come to the end of Coursera's orientation on what you can do. I wish all of you all the best, and congratulations for being part of this. I would love now to hand over the entire session to Hamza, who will be taking forward from here. Yeah, thank you very much, Mahesh, for explaining the Coursera platform, what Coursera basically offers to our students, faculty members of Pakistan. Assalamu alaikum, everyone. This is Hamza Khan, Project Manager, DLSEI project. I believe कि आप में से maximum students ने, applicants ने apply कर लिया होगा for free Coursera license, a license that is provided by Higher Education Commission of Pakistan, free of cost to the students and faculty members of Pakistani universities. I just want to tell you that this is a golden opportunity. You have a wonderful chance to avail, gain skills that are necessary in this digital era to compete in the professional job market. यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, स्किल्स की कमी जो है, गैप है हमारे कंट्री में, यूथ में, तो वही स्किल्स गैप को फिल करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट एट दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Why this is golden opportunity? Because if you want to acquire same Coursera license, महेश ने जिस तरह Coursera के बारे में जिक्र किया कि how wonderful course content Coursera offers, उसी content को access करने के लिए directly if you want to visit Coursera, you have to pay $400. लाखों का ये license Higher Education Commission of Pakistan is providing free of cost to the students and faculty members of Pakistan. So students are highly encouraged to apply for this facility, acquire license. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आपके पास लाइसेंस अगर मिलेगा आपको, तो आप खुश नसीब होंगे, खुशकिस्मत होंगे अगर आपके पास ये लाइसेंस मिलेगा. और देन फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी इंशाल्लाह जब आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें इस Coursera के लाइसेंस को. तो अबाउट द प्रोग्राम ओवरव्यू, आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ डिटेल्स अबाउट the program, the DLSEI program, और मैं कुछ लाइव ट्यूटोरियल भी आपको दिखाऊंगी कि how you can apply for this free Coursera license. Before starting, if you have any question, query, you can just send us a message. Chat box हमने म्यूट किया हुआ है, उस पर प्लीज आप मैसेज ना कीजिएगा, लेकिन हमारे पास Q&A का एक सेक्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करने से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं. हमारी टीम जैन और हारिस आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. ज्यादातर जो आपके क्यूरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि हम इस प्रेजेंटेशन में उसको कवर करें. एंड पे जाके आप कोशिश कीजिएगा कि वो क्यूरीज आप आस्क करें आपके माइंड में जो भी हो. लेकिन स्टिल आई वुड आस्क यू कि अभी आप ना क्वेश्चन आंसर्स भेजें, आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करें. Each and every details will be apprised through this presentation, inshallah. So about this program, DLSEI program, as I told you, offered by Higher Education Commission of Pakistan.
DLSCI का इम्पैक्ट, हमने क्या अचीव किया पिछले 6-7 सालों में। 2018 में फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बैक इन 2018, जिसमें 8,000 बच्चों को हमने, स्टूडेंट्स को हमने अपस्किल किया था। देन 2021 में वी स्टार्टेड द DLSCA फेज 2 प्रोग्राम, जिसमें वी अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें 2 लाख से ज्यादा कोर्स इनरोलमेंट्स हुई। एक कोहोर्ट में डबल करेंगे आप तो 4-5 लाख इनरोलमेंट्स आए, कंप्लीशंस 250,000 प्लस से आई, ऊपर आई। और हमने 50,000 यूथ को DLSE फेज 2 में हमने अपस्किल किया। फेज 3 हमारा स्टार्ट हुआ बैक इन जनवरी 2025, इसी साल हमने स्टार्ट किया था। और कलेक्टिवली अगर मैं आपको बताऊं तो 4 लाख प्लस कोर्सेज हैव बीन कंप्लीटेड एज ऑफ टुडे। एज ऑफ टुडे मैं बात करूं तो आज तक 2018 से लेके अभी तक 4 लाख कोर्सेज कंप्लीट किए हमारे स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, फैकल्टी मेंबर्स ने। 7 लाख प्लस इनरोलमेंट्स हैं, 2 मिलियन प्लस लर्निंग आवर्स स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑन कोर्सेरा, और उन्होंने लर्निंग जर्नी अपनी की। और 73,000 प्लस स्टूडेंट्स को हमने अभी अपस्किल किया। 73,000 स्टूडेंट्स को अपस्किल हमने कोर्सेरा के थ्रू किया। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जब हम फीडबैक लेते हैं, सर्वेस हम शेयर करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमारे लर्नर्स को फायदा हासिल हुआ उनके प्रोफेशनल जॉब में, फ्रीलांसिंग में, उनके एकेडमिक में। फैकल्टी मेंबर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वो अपने स्टूडेंट्स को हाई क्लास कंटेंट वो टीच कराते हैं बिकॉज ऑफ कोर्सेरा। वो सीख के वही कंटेंट जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स होती है। एंड नो डाउट स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स हो गए, मास्टर्स हो गए, बैचलर्स हो गए, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी पढ़ रहे हैं तो अपने एकेडमिक लर्निंग को, जर्नी को आप इनहैंस कर सकते हैं थ्रू कोर्सेरा। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हजारों कोर्सेज कोर्सेरा में अवेलेबल हैं। नॉट हजारों बट हंड्रेड्स, आई कैन से हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन कोर्सेरा। Google Project Management है one of the wonderful project management course which is offered by Google and which is instructed by Google directly. Google के professors वो teach करते हैं। तो in short ये कि it's a wonderful course content available on Coursera and that too free of cost available for you all. So that was the impact about the DLSCI 3 cohort 2 details. Cohort 1 हमने start किया था December 20 में and cohort 1 conclude होगा कमिंग मंथ जून के 20th जून को कोहोर्ट 1 का हमारा कंक्लूड हो जाएगा। और जितने भी लर्नर्स के पास लाइसेंस है वो लाइसेंस हम रिवोक कर देंगे, खत्म हो जाएगा उनके पास एक्सेस। और कोहोर्ट 2 के लर्नर्स को हम फिर, जो न्यू एप्लीकेंट्स होंगे उनको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। वी आर रिसीविंग हंड्रेड्स ऑफ क्यूरीज ऑन डेली बेसिस ऑन सोशल मीडिया, ईमेल्स के थ्रू, हेल्प डेस्क के थ्रू, स्टूडेंट आस्किंग ऑफ कोहोर्ट 1 learners के are we eligible for this cohort 2? तो unfortunately you guys are not eligible for this cohort 2 program. Reason ये है कि there are 2 million plus students studying in different universities of Pakistan. अब अगर कोहोर्ट 1 के लर्नर्स 30,000 लाइसेंसेस हमने दिए, अगर उन्हीं को हम दोबारा कोहोर्ट 2 में भी फैसिलिटी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट की, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती होगी विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग एंड वेटिंग फॉर द फ्री फैसिलिटी। दैट्स व्हाई हमने कोहोर्ट 1 के जितने भी लर्नर्स थे उनको हमने रिस्ट्रिक्ट रखा कि आप लोग मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हो आप इसी कोहोर्ट में पढ़ो। और कोहोर्ट 2 के लिए हम न्यू एप्लीकेंट्स को ये मौका देंगे कि आप अप्लाई करें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेरा लाइसेंस आप एक्वायर करके आप सर्टिफिकेशन अर्न करें, अपस्किल करें अपने आप को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक्टिव स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर एंड स्टाफ ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अगेन एलुमनाई and affiliated colleges are unfortunately not eligible for this program. I wish के alumni को हम ये facility provide कर सके, लेकिन unfortunately based on the HEC policy for the DLSCA program, alumni are not eligible for this program. So active students, अगर आप student हैं, university student हैं, master के student हैं, PhD के student हैं, या faculty हैं, staff हैं, admin हैं किसी भी university में, तो you are eligible for this program। और आप अप्लाई कर सकते हैं बिफोर 30th ऑफ जून हमने टेंटेटिव डेडलाइन रखी है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स जितने भी हमें आज सुन रहे हैं तो आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का तरीका क्या होगा आगे जाके मैं फिर आपको गाइड करूंगा। License distribution, again 30,000 licenses will be distributed among the students, faculty, approved applicants, I can say precisely. Cohort 1 learners are not eligible to apply for Cohort 2. DLSCA 2 learners can apply. Yeah. बैक इन 2021 से 24 पे जो प्रोजेक्ट हमारा चला था, तो ऑल द लर्नर्स ऑफ DLSCA फेज 2 पिछले फेज के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। जब भी आप, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन आपके फोकल पर्सन अप्रूव करेंगे, तो आफ्टर दैट 21 जून को यू विल रिसीव
invitation to Coursera. If you are approved by your focal person, you will surely receive an invitation from Coursera to through your email. जो आपने email primary email आपका होगा e-services पे, उसी email के against आपको email receive होगा. Coursera catalog, 13,000 plus courses are available on Coursera. As Mahesh told you, mention के thousands of courses, different domain के courses are available on Coursera. तो आपको license अगर मिलेगा तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे फॉर ओनली वन कोर्स कि एक कोर्स आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यू कैन लर्न up to 1,000 plus courses at a time. You can enroll in any kind of course. It's a kind of buffet system, a kind of Netflix system. आप सब्सक्रिप्शन आपके पास होगी, जितने नेटफ्लिक्स में आप मूवीज देख सकते हो उतने आप कोर्सेरा पे कोर्सेज लर्न कर सकते हैं हो, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ ईच कोर्स. तो एक लाइसेंस पे यू विल हैव एक्सेस टू 13,000 प्लस कोर्सेज. वी नॉट इनकरेज कि आप जैक ऑफ ऑल बनो, हर एक कोर्स में आप इनरोल होके पढ़ो, बट मास्टर ऑफ वन बनो. एक डोमेन को आप सेलेक्ट करके आप उस पर वर्किंग अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करो. सो दैट वाज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द प्रोग्राम. Benefits of the DLSCI program: DLSCI is offering 100% off discount. $100, $150 का, $400 का डिपेंड करता है, कोर्स होता है या पूरा लाइसेंस होता है. दैट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. Learner can enroll in up to 1,000 plus courses. Top ranked global universities, institutes के courses आपको अवेलेबल होंगे. मिशिगन, गूगल, IBM, येल यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस, डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज, टॉप की यूनिवर्सिटीज के इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ाएंगे और आप सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हो एट द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स. DLSCI मेकिंग पाकिस्तानी यूथ रेडी फॉर जॉब्स इन द कटिंग एज कंपनीज. 21st सेंचुरी की जो भी स्किल्स एक्वायर्ड हैं, जो हाई टेक स्किल्स हैं, पाइथन हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, UI UX डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा, चैट GPT, all kind of upgraded high-tech courses are available on Coursera, and that you can learn once you got license access to the Coursera platform. Coursera again available in various domains. आप जिस डोमेन से आप बिलोंग करते हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैचलर्स हो गया, इंजीनियरिंग, IT का हो गया, कंप्यूटर साइंस, डिजाइनिंग के हो गए, आर्ट्स का हो गया, एनी डोमेन से आप हो, आप परस्यू आपने कोई भी डोमेन किया है तो उसी डोमेन के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन कोर्सेरा पे, और आप वहाँ पे जाके आप लर्न कर सकते हो. नॉट ओनली technical skills, but soft skills are also available on Coursera. I'll give you an example. A course is available on Coursera, how to make your Instagram profile aesthetically beautiful. This kind of course is also available on Coursera. तो सिर्फ technical courses पे हम focus नहीं करते, बल्कि if you are influencer, you have a lot of courses relevant to your field is available on Coursera. इसके अलावा some soft skills are available on Coursera. Different students को मुश्किलात होती हैं कि resume writing में मुश्किलात होती हैं कि how to prepare yourself for an interview, how to present yourself for an interview, how to talk in English. Various kind of courses, stress management के courses पढ़े हुए हैं Coursera पे. तो अगर आप technical skills आप acquire करें तो along with that आप soft skills भी acquire कर सकते हो. And at the end benefit again main क्या है कि credentials. If you got skills, how you will showcase one click पे आप certifications जो आपने learn की होंगी, आपने ली होंगी, that you can present on, showcase on your LinkedIn profile. Before starting this Coursera journey, आप में से जितने भी हैं, अगर आप LinkedIn use नहीं करते, just to take advantage of this webinar, I want to tell you all के LinkedIn पे अपना प्रोफाइल लाजमी बनाएं. अगर आपका प्रोफाइल है वेल एंड गुड, अपडेट उसको रखें. नहीं बनाया तो LinkedIn पे लाजमी प्रोफाइल बनाएं. प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए LinkedIn प्रोफाइल लाजमी है. LinkedIn को Instagram, Facebook, TikTok की तरह यूज किया करें तो इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे. How to apply? A short precisely how to apply, register और sign in at the portal eservices.hec पे आप जाएंगे, e-courses पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, सबमिट करेंगे एप्लीकेशन. आपका फोकल पर्सन जो होगा वो आपके एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा. जस्ट प्रिसाइजली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है फॉर दिस प्रोग्राम. लेट मी साइन इन वंस अगेन. Just a second, please. Let me sign in. तो मैं आपको लाइव ट्यूटोरियल देता हूँ कि हाउ, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो वेल एंड गुड, किसी ने नहीं किया तो कैसे आप अप्लाई करेंगे, और क्या मुश्किलात अगर आपको आती हैं तो किस तरह आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं उन इश्यूज को. ओके,
अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ दैट वर्क तो दैट वुड बी बेटर। नहीं होगा तो हमने एक वीडियो भी आपके लिए बनाई है लाइव ट्यूटोरियल की, कि किस तरह आपने अप्लाई करना होगा कोर्सेरा के लिए, फ्री कोर्सेरा लाइसेंस के लिए थ्रू ई सर्विसेज प्लेटफॉर्म। सो इट्स नॉट वर्किंग यूट्यूब पे आप हमारा जाए, आप जाएंगे, बल्कि या वी हैव एन इंफॉर्मेशनल पोर्टल DLSCI का, हमारे पास एक पोर्टल है। इट्स एन इंफॉर्मेशनल पोर्टल, dlsci.hec.gov.pk। दिस इज एन इंफॉर्मेशनल पोर्टल। इस पे आप जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्राम आप ले सकते हैं। मीडिया सेक्शन पे आप जाएंगे तो कुछ डाउनलोडेबल्स हैं, कुछ हमारे प्रेस रिलीजेस हैं, हाउ टू रजिस्टर के डिटेल्स हैं, अप्लाई नाउ का कॉल टू एक्शन है विच विल लैंड यू डायरेक्टली टू द ई सर्विसेज पोर्टल। इफ यू वांट टू सर्च फॉर सम कोर्सेज यू कैन सर्च व्हाट इज DLSCI, व्हाट इज कोर्सेरा, गाइडेड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गाइडेड प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन कोर्सेरा, what type of professional certificates are available on Coursera, specialization के क्या courses हैं। तो complete details are available on Coursera regarding the Coursera program are available on this DLSCI का पोर्टल। यहाँ पे अगर मीडिया सेक्शन पे आप जाएंगे, वीडियोस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लर्नर गाइड इंस्ट्रक्शन की एक वीडियो हमने ऐड की हुई है कि हाउ टू अप्लाई फॉर दिस कोर्सेरा प्रोग्राम थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किस तरह आपने यहाँ पे अपने आप को जाके अप्लाई करना होगा। यूट्यूब पे आप जाएंगे, यहाँ पे DLSCI 3.0 आप करेंगे, हमारा अपना पेज है यूट्यूब पे जाके फर्स्ट वीडियो आपके पास जो आएगी, हाउ टू अप्लाई फॉर द DLSCI प्रोग्राम, दिस वीडियो यू कैन वॉच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड देन इस वीडियो से आप मदद ले सकते हैं। जैन, कुड यू प्लीज कॉपी पेस्ट द URL ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो इन द चैट बॉक्स, ताकि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, It's लर्नर्स हैं, 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. फैसिलिटी। अच्छा, तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे कोर्स के प्रोग्राम पे, तो देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, जब आप अप्लाई करेंगे, सबमिट करेंगे, हम आपसे कुछ एविडेंस मांगेंगे। एविडेंस इस वजह से होता है कि एज आई टोल्ड यू के वी हैव रिस्ट्रिक्टेड अलुमनाई एफिलिएटेड कॉलेज स्टूडेंट कोहूर्ट लर्नर्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो एविडेंस आपका होना चाहिए कि जो शो करेगा यू आर एक्टिव स्टूडेंट और अ फैकल्टी मेंबर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। तो वो एविडेंस आप अपलोड करेंगे, और आपका जो फोकल पर्सन होगा, बेसिकली देयर आर 250+ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना फोकल पर्सन है। वेरिफिकेशन आपका फोकल पर्सन करता है। फोकल पर्सन आपका किसी डिपार्टमेंट का हेड भी हो सकता है, रजिस्ट्रार भी हो सकता है। आई शो यू कि कहाँ से आपको फोकल पर्सन की डिटेल आपको मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, तो इट यूजुअली टेक्स अ वीक फॉर अ फोकल पर्सन। 2 दिन, 1 दिन भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम वीक लगता है फॉर एनी फोकल पर्सन टू वेरीफाई योर एप्लीकेशन। वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करते हैं, आपके एविडेंस को देखते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दोज डिटेल्स योर फोकल पर्सन विल वेरीफाई योर एप्लीकेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका अप्रूव हो जाएगा। आप स्टूडेंट नहीं है, फैकल्टी मेंबर नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। फोकल पर्सन अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपके एप्लीकेशन को उसने वेरीफाई नहीं किया, तो आप यू आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट योर फोकल पर्सन। आप अगेन इस सोशल हमारा जो ये पोर्टल है, इस पे फोकल पर्सन पे आप जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लेट्स से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, एंड आई वांट टू चेक माय फोकल पर्सन के हु इज माय फोकल पर्सन। तो सिंपल यहाँ पे मैं कॉमसेट्स लिखूंगा, सीधे मेरे नाम आ जाएगा फोकल पर्सन का, डॉक्टर अरूबा शरीफ, हु इज फोकल पर्सन ऑफ माय यूनिवर्सिटी। तो मैं फोकल पर्सन डॉक्टर अरूबा को मैं ईमेल कर सकता हूँ, यहाँ पे coursera@comsets.edu.pk उनको ईमेल करके मैं उनको रिमाइंड करा सकता हूँ कि प्लीज मेरे एप्लीकेशन को आप वेरीफाई कीजिएगा। तो दैट्स हाउ द एप्लीकेशन पोर्टल विल वर्क। फोकल पर्सन आपका जैसे ही वेरीफाई करता है, यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम कोर्सेरा फ्रॉम HEC कि आपका एप्लीकेशन जो है तो वो अप्रूव हो गया है, एंड यू विल रिसीव कोर्सेरा इनविटेशन लिंक ऑन 21 जून। अगेन 21 जून को आपको इंशाल्लाह लाइसेंस मिलेगा इफ योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड। Again, there is a revocation policy. If there is something free that Higher Education Commission of Pakistan is providing to you, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, तो देयर आर सम पॉलिसीज। पॉलिसी नंबर 1 ये है कि लर्नर रोल इन अ कोर्स विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग इट। ये अगेन जब आपको इनवाइट मिलेगा, अगेन हम आपको ये प्रेजेंटेशन देंगे अबाउट दिस रेवोकेशन पॉलिसी। बट जस्ट टू टेल यू प्रिसाइजली के अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। और एक पॉलिसी ये है कि विद इन 15 days आप एक्सेप्ट करेंगे इन्विटेशन को 21 जून को जब आप मिलेगा, और आपने किसी भी कोर्स में, शॉर्ट कोर्स में, बड़े कोर्स में, गाइडेड प्रोजेक्ट में आपने इनरोल होना होगा। सेकंड पॉलिसी ये है कि जब 21 जून को आपको लाइसेंस मिलेगा, तो विद इन 1 month मीन्स के 21 जुलाई तक आपने
क्या करना है, एक शॉर्ट कोर्स कंप्लीट करना है, तो देन आपका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया इन 2 गाइडलाइंस पे, तो आपका लाइसेंस रिवोक होकर वेटिंग लिस्ट में जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, बिकॉज वी रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम आवर लर्नर्स, फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स। तो थाउजेंड्स ऑफ सरप्लस हमारे पास हो, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस जो होती हैं अप्रूव, वो वेटिंग लिस्ट पे होती हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे, वेटिंग लिस्ट के एप्लीकेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ये कुछ रिवोकेशन पॉलिसीज थी। स्टूडेंट जर्नी फ्लो चार्ट हम कोशिश करेंगे आज स्टूडेंट जर्नी फ्लो चार्ट भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें। जैन हारिस, प्लीज इफ यू कुड शेयर सोशल मीडिया लिंक्स इन द चैट बॉक्स, आप शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो हमारे सोशल मीडिया को आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो करें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो हमारे अपडेट्स होते हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अपलोड करते हैं, वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट है कि अबाउट योर जर्नी ऑन कोर्सेरा, अबाउट ऑन DLSCI किस तरह आपने अप्लाई करना है, वेरीफाई किस तरह होगा, कंप्लीट डिटेल्स लर्निंग अप्लाई से लेके लर्निंग जर्नी तक, सर्टिफिकेशंस तक यहाँ पे अवेलेबल होगी। Some flyers for DLSCI Phase 3, some testimonials as well. जो कि हमारे टॉप लर्नर्स थे उनकी कुछ टेस्टिमोनियल्स हमने इस फ्लायर में दिए हैं। हमने आपकी यूनिवर्सिटी में भी कुछ ब्रोशर्स भेजे हैं, आप अपने नोटिस बोर्ड्स पे चेक कीजिएगा आने वाले दिनों में अबाउट द DLSCA प्रोग्राम। कुछ ब्रोशर्स आपको दिखाई देंगे, इन्फॉर्मेशन उस पर भी अवेलेबल है कि हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट Coursera offers, who is eligible, what type of domain courses are available on Coursera or DLSCA platform. Okay, these are some social media platforms links। हमारा DLSA का पोर्टल है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया, फेसबुक के पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं। ग्रुप इज बेसिकली फॉर डिस्कशन प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो एक दूसरे के साथ। यूट्यूब का चैनल है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल है हमारा। तो इस तरह हमारा कंप्लीट एक सोशल मीडिया एक हमने स्टेप रखा है, और वहाँ पे आप जाके अपने काइंड की इंफॉर्मेशन को आप सीख कर सकते हो। So that was all about the DLSCA program. I believe कि maximum students को idea हो चुका होगा कि how this program will work. Some important points to remember, कुछ questions होते हैं जो कि students हमसे पूछते हैं daily basis पे, वो है ये है कि approved applicants को license कब मिलेगा। तो approved applicants will receive Coursera invite on 21st June 2025 via their emails. Registration closing date जो है जून के लिए, अगर आपके पास ये लाइसेंस मिलेगा तो 6 महीने के लिए आपके पास एक्सेस होगा इस लाइसेंस का। 6 महीने में मैक्सिमम कोर्सेज आप लर्न करें। Alumni and cohort learners are not eligible for this program. Affiliated colleges are also not eligible. How to apply? विजिट करें हमारे DLSCA फेसबुक के पेजेस पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और लर्नर गाइड इंस्ट्रक्शन वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं, और आप लर्न कर सकते हैं कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस फ्री फैसिलिटी। या सो हम कुछ अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा कैंपस अवेलेबल नहीं है जब हम अप्लाई करते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमने कि आप किसी भी कैंपस को सिलेक्ट कीजिएगा, मेन कैंपस को सेलेक्ट कीजिएगा। तो बेस्ड ऑन योर एविडेंस बेसिकली आपकी वेरिफिकेशन होती है, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट या कैंपस नहीं होती। तो आप कैंपस मेन कैंपस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डिपार्टमेंट नहीं है तो आप डिपार्टमेंट जो है तो कोई भी सिलेक्ट करें, फोकल पर्सन आपको वेरीफाई कर लेगा बेस्ड ऑन योर एविडेंस। ओके, सम क्वेश्चंस आर व्यू स्टूडेंट्स हु आर एम्प्लॉयड एलिजिबल। स्टूडेंट्स हैं एम्प्लॉयड हैं, मीन्स कि वो एलुमनाई हैं। अगर आउट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो वर्किंग कर रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। वो एलुमनाई में आते हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर this program. I'm a BS IT student. Am I eligible? Again, देखें, if you are an active student mean कि if you are a student of bachelor's, if you are a student of master's or PhD, MPhil, अगर आप student हैं, अब अगर आप अपने आप को student समझते हैं तो you are eligible for this program. Student आप कब अपने आप को समझेंगे? जब आप पढ़ रहे होंगे, आप active होंगे यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो यू आर 100% एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। इज देयर एनी फी और फ्री? दिस फैसिलिटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चीफ लिख के कहते हैं कि दिस फैसिलिटी इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर बॉडी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो देयर इज नो चार्जेस, कोई फी नहीं है। अगेन आई वांट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि ये दिस लाइसेंस इज वेरी एक्सपेंसिव। $100 का ये लाइसेंस होता है, लेकिन अगेन दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू। Recently graduated are alumni, they are not eligible.
I'm a student of BSCs. Again, देखें, you are a student, then you are eligible. Don't ask these questions. अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर ये ना पूछें, सीधा जाके आप अप्लाई करें. I just passed 12th class. Am I eligible? No. If you are a university student, then you are eligible. If अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ये नहीं है, ग्रेजुएटेड हैं या अभी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो still you are not eligible for this program. Okay. Okay. Some other questions, important questions are okay. Affiliated universities are unfortunately not eligible for this program. They cannot apply for this program. अभी तक हमारी जितनी भी policy है तो वो ये है कि they are not eligible for this program. How long is this Coursera license valid for? 6 months के लिए आपके पास लाइसेंस होगा. देखें, कोहोर्ट 1 अभी चल रहा है. हमारा कोहोर्ट 1 को दिसंबर 2024 में हमने इनको लाइसेंस दिया था, तो 6 महीने इनके 28 जून को पूरे होने वाले हैं. इनसे हम लाइसेंस लेंगे और न्यू स्टूडेंट्स को फिर लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे. तो 6 महीने का ये होता है. I had already availed the first cohort Coursera license. Now can I apply for the second cohort as well? I have completed more than required number of courses. There were minimum of 3, right? देखें, if you are a student of cohort 1, then you are unfortunately not eligible for this new cohort. अगर आप existing cohort 1 के learner हैं, you still have a lot of time. You have almost 21-22 days. 21-22 दिनों बाद आपका लाइसेंस रिवोक होगा, तो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. यू कैन कंप्लीट योर कोर्सेज. आपके जितने भी पेंडिंग कोर्सेज हैं, तो आप कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट कर सकें. वी आर कंटिन्यूसली ट्राइंग टू लॉग इन, बट द एरर इज द सेम. आप HEC हेल्प डेस्क कोशिश कीजिए, उनको रीच आउट कीजिएगा. आर यू श्योर ऑल कोर्सेज आर कंप्लीटली फ्री? Okay, why HEC वेबसाइट टेक फॉर एवरी लोग? या बेसिकली बहुत ज़्यादा रश होता है HEC के वेबसाइट पे. अटेस्टेशन का भी होता है, HEC PhD का भी होता है, फिर TLSCI हमारा भी होता है. thousands of students are trying to log in, तो इस वजह से थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, एक्सेस आपको मिल जाएगी इस सर्विसेज पोर्टल का. Okay, I'm graduate. Graduate means alumni. You are not eligible for this program. ओके, एक स्टूडेंट का सवाल है निम्रा का कि आई हैव अप्लाइड फॉर कोहोर्ट 2. फोकल पर्सन ने अप्रूव कर दिया है. ही इन्फॉर्म मी बाय ईमेल. 21 को मिलेगा लाइसेंस. व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? उसके बाद आप पढ़िएगा. जब आपको लाइसेंस मिलेगा तो देन यू आर सपोज टू लर्न. कोर्सेज आप लर्न कर सकती हैं उसके बाद ऑन कोर्सेरा. If we are currently enrolled, HEC portal asks for proof. Can we submit unofficial transcript if rejected? Then what should we submit as proof of enrollment? Can you please give me a few suggestions? Anusha, देखें, enrollment के लिए evidence के लिए आपके पास admit card होता है आपकी यूनिवर्सिटी का. That admit card you can upload. आपके पास admission letter होता है, वो आप upload कर सकती हैं. Transcript होता है, वो आप upload कर सकती हैं. Any evidence, any hard copy evidence or soft copy evidence which clearly portrays that के you are active student of X university, then उसकी बेस पे आपका वो एप्लीकेशन जो है वो फोकल पर्सन वो अप्रूव कर देगा. या अनफॉर्चुनेटली एलुमनाई आर नॉट एलिजिबल. एक स्टूडेंट का सवाल था कि एलुमनाई को एलिजिबल होना चाहिए, लेकिन रियली सॉरी, ये एलिजिबल नहीं है फॉर दिस प्रोग्राम. What is the difference between cohort 2 and DLSCI program? देखें, cohorts DLSCI program, ये पूरा एक प्रोग्राम जो है उसका नाम है DLSCI. DLSCI में फिर फेजेस होते हैं. बैक इन 2018 फेज 1 था, 21 में फेज 2 था, ये फेज 3 है. फेज 3 के अंदर फिर 2 cohorts हैं. cohort 1 अभी कंक्लूड होने वाले, cohort 2 स्टार्ट हो जाएगा. सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई बिलीव के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आइडिया हो चुका होगा कि how to apply for this free facility. Let me share social media platforms here in chat box. आप chat box देखिएगा, जितनी भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. वहां से आप एक्सेस करके आप उनको फॉलो कर सकते हैं. Yeah, so I just share links for the social media platforms. So that was all for today. Thank you very much once again. अगर आपने अप्लाई किया है तो वेल एंड गुड. आपने अप्लाई नहीं किया तो आप लाजमी अप्लाई करें. अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को उनको अवेयर करें. उनको बताएं कि फ्री कोर्सेरा लाइसेंस is available with HEC. Just apply.
and grab the opportunity of free Coursera license and upskill yourself. Main मकसद जो है तो वो है upskill yourself. Upskill करें अपने आप को, certification earn करें और इंशाल्लाह जब आप graduate होंगे यूनिवर्सिटी से तो you will have the skills required for this digital era और आप professional job market में फिर compete कर सकते हैं. So everyone, thank you very much. Thanks for joining once again. As soon as possible YouTube पे और social media पे अपलोड करें ताकि वहां से भी आप information ले सकें. Thank you very much. Goodbye.